Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well and not only enjoying, and with that, you are studying also. You are doing some maths work. So, as you know, I have completed that exercise 9A, and 9B is a multiple choice question, MCQ. So, I hope so many of you have done this exercise also, but you did not ask any doubt from 9B. If you are having doubt, you can ask to me, then only I will explain from this. And students, this is a test paper. If you look it, after 1-2 chapter, there are the test papers are given, and you need to try the test paper by yourself. And if you are having any doubt, you can ask to me. Okay. So today I am going to start next chapter, that is profit and loss. Okay. So students, to understand the profit and loss, we need to understand something. Suppose, what is the profit and loss? So many already you know that things. So to understand this topic, profit and loss, you must firstly understood what is the meaning of cost price. जिसको generally हम क्या बोलते हैं CP. What is cost price? Cost price, that is CP. So what is CP? Let's look at कैसे हम इसको समझते हैं. CP, what is the cost price? So actually, when you are going to the market and suppose we want to purchase this marker, ये मार्कर हमको परचेज करना है. So the amount on which any article, any object is bought is called the cost price. The amount on which any article is bought, जिसको हम जिस प्राइस में परचेज करते हैं, that is called its cost price. अभी देखो ये cost price हुआ. So the amount for which an object or article, whatever an object or you can say article, an object or you can say article is bought. Okay, is called its cost price. Is called its cost price. Is called its cost price. In shortly, it is also called CP. So CP is the amount of an article on which it is purchased, on which it is bought. Okay, so that is called the cost price. तो जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, इस मार्कर को हमने परचेज कर लिया, सपोज करो 20 रुपीज में. सो दिस 20 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस फॉर मी. बट डियर स्टूडेंट, विद दैट इफ आई विल परचेज ऑन 20 and I will sell to someone else on 25. Okay, 20 में हमने परचेज किया, ये 20 रुपीज हमारे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया. ओके, एंड इफ आई विल सोल्ड दिस मार्कर टू समवन एल्स ऑन 25, तो ये जो 25 रुपीज होगा, ये हमारे लिए क्या हुआ, हमने सेल कर दिया. इस अमाउंट को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस. तो नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं सेलिंग प्राइस. व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस. लुक, व्हाट इज सेलिंग प्राइस? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसपी. सेलिंग प्राइस, द अमाउंट ऑन विच an article is sold करते हैं हम, जिसमें सोल्ड करेंगे. an article is sold is called its selling price. इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. तो दिस डियर स्टूडेंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेलिंग प्राइस. अभी हमने बताया, सपोज करो हमने कॉस्ट प्राइस इसका 20 और सेल कर दिया 25 में, तो कितने रुपीज का डिफरेंस हुआ, 5. ये जो 5 रुपीज हमको क्या हो गया, यू कैन गेस ना, व्हाट इज गेन, प्रॉफिट. ये प्रॉफिट होता है. तो प्रॉफिट कहां होने वाला है, जब ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर हो जाए तो गेन होता है, प्रॉफिट होता है. तो ये हम लोग समझने वाले हैं प्रॉफिट. एंड लॉस कब होगा, सपोज करो आई परचेज ऑन 20 एंड आई सोल्ड ऑन 18.
18 में हमने सेल कर दिया, तो 20 में तो हमने परचेज किया था और 18 में सेल कर दिया, तो यहाँ 2 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ, बिकॉज इन दिस सिचुएशन सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. ओके, सो दैट इज द टॉपिक दैट वी नीड टू अंडरस्टूड. ओके, and one more thing I will want to explain. So when you are going to the purchase anything, so you are looking there, the so many things are there, manufactured, from where it is made in India, made in China, whatever is there. एक तो ये होता है. फिर उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोग अगर कोई फूड आइटम्स है तो उसमें हम उसका क्या देखते हैं, वैलिडिटी देखते हैं, वैलिड टिल दिस मच मंथ, दिस मच ईयर. ओके, ये देखते हैं. और नेक्स्ट थिंग हम सबसे इम्पोर्टेंट, हम शॉप पे सबसे पहले देखते हैं एक्सपायर कब हो रहा है और डेट क्या है, सॉरी एमआरपी क्या है, एमआरपी. सो दिस आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, एमआरपी. एमआरपी मींस होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. इट्स मीनिंग इज दैट इफ सपोज करो ऑन द दिस मार्कर 30 रुपीज इज रिटेल, इट्स मीनिंग दैट शॉपकीपर कैन sell this product maximum on 30 rupees, not more than 30. ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, इससे ज्यादा में कोई भी शॉपकीपर इसको सेल नहीं कर सकता. मैक्सिमम क्या हो सकता है, 30 रुपीज. ही कैन गिव समथिंग डिस्काउंट टू यू. हम लोग डिस्काउंट पूछते हैं, कुछ तो कंसेशन होगा, कुछ डिस्काउंट होगा. तो समटाइम ही इज गिविंग द डिस्काउंट 1 रुपीज, 2 रुपीज, 1%, 2%, वट एवर इज देयर. ओके, सो दैट इज द डिस्काउंट. क्लियर? तो MRP is the different thing. Cost price and selling price are the different thing. अभी MRP सपोज करो 30 है और हमने ले लिया 28 में, तो कॉस्ट प्राइस हमारे लिए 28 हुआ. बट यही 28 रुपीज शॉपकीपर के लिए क्या हुआ. नाउ स्टूडेंट थिंक, सपोज दिस मार्कर आर एनी अदर, कोई हमने तुम्हारी बुक है, सपोज करो हमने शॉपकीपर से परचेज करी है 200 रुपीज में. सो कैन यू टेल मी दिस 200 रुपीज व्हाट इज फॉर मी, इट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर मी, बट व्हाट इज फॉर द शॉपकीपर, ये 180 या 200 रुपीज शॉपकीपर के लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ. तो एक कस्टमर और शॉपकीपर, जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होता है वो कस्टमर के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा. ऐसे सपोज करो हमने इसको 20 रुपीज में किसी को सेल कर दिया, ये 20 रुपीज हमारे लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, बट जिसने परचेज किया उसके लिए क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस. तो दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में चेंज हो जाते हैं. ओके, क्लियर? सो अभी हमने बात किया, ऑलवेज यू कैन आस्क फॉर द डिस्काउंट, आस्क फॉर द कंसेशन. हम किसी भी प्रोडक्ट में आस्क कर सकते हैं, इट इज आवर राइट, वी कैन आस्क अबाउट द डिस्काउंट इफ एनीथिंग, बिकॉज दिस एमआरपी इज द मैक्सिमम, ये सब हाईएस्ट होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो ये क्लियर. सो बट प्रॉब्लम ये है कि एवरीवेयर द सेम एमआरपी इज मेंशन्ड. ओके, तो हम यहाँ सो here therefore discountable होता है, so many chances होते हैं because shopkeepers are getting so much profits are there, so therefore you can ask about the discount. concession के लिए पूछ सकते हो. अभी हम लोग बात करते हैं गेन की, बात करते हैं गेन क्या होगा. अभी हमने एक्सप्लेन किया तो गेन. नाउ वी विल अंडरस्टूड व्हाट इज द गेन और प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट या गेन बताएंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट और गेन. अभी देखो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड व्हेन प्रॉफिट इज हैपेंड, व्हेन गेन इज हैपेंड. Profit or you can say gain, so both are the same thing, profit or you can say gain. What is the meaning of profit or gain? अभी हम समझते हैं कि प्रॉफिट और गेन एक्चुअल में होगा क्या. if selling price of any article is more than its cost price, अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर हो जाए, देखो एक ही आदमी के लिए ऐसा होना चाहिए, या फिर शॉपकीपर के लिए या कस्टमर के लिए, कोई भी है जो सेल करेगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से अगर ग्रेटर हो जाए, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन देयर विल बी गेन, देन देयर विल बी गेन, देन देयर विल बी गेन. सो द डिफरेंस ऑफ, अभी देखो गेन या प्रॉफिट होगा क्या, व्हाट इज द गेन और यू कैन से प्रॉफिट, बोथ आर द सेम थिंग. ये प्रॉफिट या गेन एक्चुअली होता क्या है, ये सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करो, दैट इज कॉल्ड द गेन. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट. सो मच सिंपल. कैसे हम किसी क्वेश्चन पे गेन फाइंड आउट करेंगे, उसके सेलिंग प्राइस से उसका कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो. जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया 25 में, 20 में हमने परचेज किया और 25 में सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस इज 25 and I sold on 20, so how much, rupees 5 is our gain.
But so many times, if you are watched on in the shop or you discuss to someone, you will get that gain and profit or loss. These are discussed in the percentage also. डिस्काउंट भी हम परसेंट में बात करते हैं और इसके पहले चैप्टर हमने क्या किया था परसेंटेज. तो अभी यहाँ पे हमको समझना है हाउ कैन वी कैलकुलेट द गेन इन परसेंट. कैसे हम किसी क्वेश्चन का गेन परसेंट फाइंड आउट करते हैं. सो गेन इन परसेंट. ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द गेन परसेंट ऑफ एनी क्वेश्चन. तो देखो गेन परसेंट and gain percent is equal to gain upon CP, क्योंकि CP पे इनको gain होता है into 100. This is the formula to find out the gain percent. Gain upon CP into 100. If you want, you can use in this way also. Gain क्या होता है? SP minus CP upon CP into 100. This is the gain percent of any question. ये किसी क्वेश्चन का गेन परसेंट फाइंड आउट करने का मेथड होता है. सो गेन इन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इनटू 100 आरएसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100. सो दिस इज द गेन इन परसेंट. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लॉस. व्हाट इज द लॉस, कैसे हम लॉस को समझेंगे. सो व्हाट इज लॉस. लॉस हिंदी में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली बोलते हैं नुकसान हो गया ना. तो ये लॉस है, मीन्स हाउ मच लॉस, हाउ मच नुकसान, हमको कितना नुकसान हो रहा है, लॉस हुआ. ओके, सो दैट इज लॉस. सो अभी लॉस कब होगा. सपोज करो आई गॉट दिस मार्कर ऑन 20 एंड सोल्ड ऑन 18. तो अभी हमको देखो 2 रुपीज माइनस हो गया. 2 रुपीज हमने 20 में लिया था, तो 20 हमको देना हुआ था परचेज करने के लिए, बट आई सोल्ड ऑन 18, तो 2 रुपीज का लॉस हुआ. सो व्हेन लॉस इज हैपन, if CP is greater than SP, what is, if cost price is greater than its selling price, then there will be loss. तो फिर उस क्वेश्चन में हमको लॉस होता है, then there will be loss, then there will be loss. So easily you can understood now how can you find out the loss. Loss greater क्या हुआ, cost price, इससे greater है selling price, तो loss कैसे मिलेगा, cost price minus selling price. Therefore loss is equal to कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो ये मेथड है लॉस फाइंड आउट करने का. कॉस्ट प्राइस से जैसे 20 और 18, तो लॉस कितना हुआ 20 है. अभी देखो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. अभी हमने एक्सप्लेन किया था 20 इज द कॉस्ट प्राइस, 18 इज द सेलिंग प्राइस. सो आई गेट द लॉस ऑफ 2 रुपीज. 2 रुपीज का लॉस हो गया. सो दिस इज कॉल्ड लॉस. Then how can we calculate the loss in percent? कैसे हम किसी क्वेश्चन का loss in percent find out कर सकते हैं. Loss in percent. So loss in percent is equal to loss upon, कहाँ से loss हो रहा है, CP से. तो जिससे होता है उससे, जैसे हमारा हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल सपोज करो नंबर्स का हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, कर रहे हैं ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100. तो सिमिलरली लॉस ऑन CP, so loss upon CP into 100, that is called the loss in percent. Otherwise this also can be written in this way. और कैसे समझ सकते हैं, CP minus SP divided by CP into 100. This is called loss in percent. Okay, so this is the formula to find out the loss in percent. Okay, students, if you look in the question, so there are the different formulas are given for. अगर लॉस हो तो सीपी कैसे निकालोगे, लॉस इन परसेंट हो तो सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी कैसे निकालेंगे. इफ यू वांट you can learn this formula, otherwise not required, because only by this formula we can solve the questions. Okay, so always we can solve the questions by these only. Clear? Okay, ये रिमेंबर रखना है कि कभी भी लॉस और प्रॉफिट जो होता है ऑलवेज सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, इवैल्यूएटेड, ये सॉल्व किया जाता है ऑन सीपी ओनली. सो दैट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज. बोथ में यहाँ सीपी होगा, यहाँ सीपी माइनस एसपी होगा और गेन में एसपी माइनस सीपी होगा. जो ग्रेटर होता है उससे स्मॉल को माइनस किया जाता है. ओके, सो दैट इज. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस आल्सो. So much simple questions in beginning. There are the first question. If I will explain first question of the exercise 10a, question number first of the exercise 10a. So look, what is the question, how can we solve the question. Question is given, find the gain or loss percent when. Find the gain or loss percent when. चलो फर्स्ट का फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 1 इट्स फर्स्ट पार्ट, फाइंड आउट करना है गेन और लॉस परसेंट। तो जो भी यहाँ पे हो रहा होगा गेन है तो गेन का परसेंट निकालना है, लॉस है तो लॉस का परसेंट फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 10A, exercise 10A, first question. What is the question? In this first question, it's first part. So CP is given, cost price. CP means cost price. How much given? Rupees 620. Rupees 620. And selling price is given rupees. Selling price is given rupees 713. 713. What is greater? Since selling price is more than cost price, therefore there will be gain. Therefore gain ना, इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है? गेन। तो जब गेन होगा तो हम पहले गेन कैलकुलेट करेंगे। गेन इज इक्वल टू, therefore गेन हुआ तो गेन कैसे मिलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, करेक्ट ना? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? 713 माइनस 620, करेक्ट ना? सॉल्व करो, क्या आया? सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 11 माइनस 2 9, और ये दो 6 6 कैंसिल हो। कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है? 93। अरे इज इट क्लियर ना? सो आई एम गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ 93 रुपीस, बट इट इज नॉट, इट वाज नॉट आस्क्ड ओनली प्रॉफिट, हमको बताना है प्रॉफिट इन परसेंट आल्सो, राइट ना? परसेंट में बताना है, तो देयरफॉर गेन इन परसेंट, गेन परसेंट हमको बताना है, गेन परसेंट। सो जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड द फार्मूला, गेन डिवाइडेड बाय व्हाट? किससे डिवाइड करते हैं? कॉस्ट प्राइस से, डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। व्हाट इज गेन? 93। इसको डिवाइड किया बाय सीपी। व्हाट इज सीपी? सीपी 620 इनटू 100। फिर ये सॉल्व कर लेना है, तो ये वो 1 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट? फिर ये हम डिवाइड के लिए ट्राई करते हैं, किससे ये डिवाइड हो सकता है, दैट वी नीड टू थिंक ना। 620 अपॉन 93 आ रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर चेक कर लो, नो प्रॉब्लम, ओके। सो नाउ वी नीड टू ट्राई इट इज डिविजिबल बाय व्हिच। अभी देखो ये तो 3 से होगा, बट ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, 2 से डिवाइड करेंगे, और ये चलो हम 2 से ही कर देते हैं। तो ये हुआ 3 131, और यहाँ हो गया 5, और 31 से ये डिवाइड हो जाएगा। 31 3 जा 31 3 जा 3 5 जा 15। So how much? Not 15 rupees, 15%. 15% gain. 15% gain. What is its meaning? Its meaning is that ये जो cost price है ना, इसका 15% रुपीस हमको गेन हुआ। मींस each 100 में 50 रुपीस का गेन हुआ, तो 600 में हो गया 90, और 20 रुपीस का 15% 3 होगा तो 93%। So you can get that। अभी चेक भी कर सकते हो, 620 का कितना गेन हो रहा है? 15%। ऑलरेडी यू नो टू फाइंड आउट द 5%। देखो ये कैंसिल हुआ, 5 3 एंड 5 2 से कैंसिल कर दिए, 31 into 3 we got 93। ये तो देखो सिर्फ हमने चेक करने के लिए एक्सप्लेन किया है। हाउ मच we got? 93। Its meaning is that I got the profit of 15% in this transaction, in this trade. Okay. So next, one more part I will explain from that. It's next part, that is third. I will explain its third part. तो अभी हम लोग इसका थर्ड पार्ट नोट करने वाले हैं। It's third part. First question, it's third part. Okay, look it. Third part of question number 1. What is this? This is given. CP is given rupees 345. CP is given rupees 345. And selling price is given rupees 372.60. This is given the selling price. अभी देखो यहाँ क्या है? Selling cost by selling. What is greater? Selling price not greater ना? In this question also selling price is more. इस क्वेश्चन में भी सेलिंग प्राइस, तो चलो इसको हम छोड़ करके कुछ और बताते हैं जिसमें सेलिंग प्राइस लेस हो, ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं। चलो फोर्थ करते हैं, फोर्थ पार्ट। इट्स फोर्थ पार्ट बिकॉज़ इट इज आल्सो ऑफ द सेम फॉर्म, सो आई विल एक्सप्लेन इट्स फोर्थ पार्ट। इन दिस कॉस्ट प्राइस इज गिवन 80, कॉस्ट प्राइस इज गिवन रुपीस 80, and selling price, this is 80, and selling price is given rupees 76.80. Okay, in this question look what is greater, cost price is greater than selling price। तो यहाँ पे
कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर है, या नोट करो, सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देयरफॉर देयर विल बी गेन और लॉस। कैन यू टेल मी क्या होने वाला है यहाँ पे, गेन होगा या लॉस होगा? यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉस। सो दिस देयरफॉर देयर विल बी लॉस, तो देखो लॉस होगा, तो हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, और लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो, अभी हमने एक्सप्लेन किया था कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमने यहाँ पे we need to calculate the loss। इसका मतलब ये 80 में हमने परचेज किया था और 76.80 में सेल कर दिया, तो क्या हुआ, हमको लॉस हुआ। तो we will calculate in this question loss, therefore loss, and loss is equal to CP minus SP। what is CP? 80 minus SP 76.80, तो ये हुआ 0.20 here, and look it, यहाँ देखो 9 होगा, 9 से माइनस करो 3, और ये हो गया 7 कैंसिल, सो 3.20, हाउ मच, 3.20 means how much loss, rupees 3.20। so how much percent loss we got, percent loss is percent, loss percent is equal to loss divided by किससे करते हैं, CP, राइट ना, always CP, loss और gain both CP से फाइंड आउट करना होता है, CP into 100। so what is loss, 3.20 divided by CP, CP is rupees 80 into 100, 100 से देखो यहाँ से 10 कैंसिल करो, और if you look it, इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो जब ये कैंसिल करोगे 0.4 होगा, आई होप यू अंडरस्टूड, 0.4 into 10, 0.4 मिलेगा ना, 0.4 को 10 में मल्टीप्लाई कर दो, कैन यू टेल मी क्या मिला, 0.4 into 10, so 4% का लॉस हुआ, इसका 4%, 80 का, और 80 का 4%, you can check it, 4% of 80, 32 by 10 means 3.3, so कितना लॉस हुआ, 3.2। so in this way you can verify your answer also। so how much loss, 4% loss is there, correct na? so in this question we understood there is the loss of 3.2%, so this is the fourth of this। so question number 2 also I will explain, question number 2, and what is given question number 2, look it, question number 2 is find the selling price। अभी देखो यहाँ हमको selling price फाइंड आउट करना है, चलो 2 का मैं सेकंड सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इट्स सेकंड पार्ट, solve the find the selling price in that, CP is given 915, CP is given rupees 915, and gain is given, gain, कोई gain दिया हुआ है, gain not gain but gain in percent, right ना, so given gain in percent, that is 6 as a whole, 2 by 3% gain, ये percent gain हो रहा है, this much percent gain, और find out क्या करना है, selling price, we want selling price, okay। so students कैसे ये हम solve करते हैं, देखो इसके लिए हमको क्या करना होगा, so gain is 6.22, those of you want to solve by the learning the formula is given in book, you can do, but that is not very much easy, because you need to solve by using the process, that is the better, because in this you no need to do so much memorization, बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना होता है। अभी तो गेन परसेंट में दिया हुआ है और एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सबसे पहले हम गेन परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इनटू 100, गेन इन परसेंट हाउ मच गिवन, 6 as a whole, 2 by 3, देखो हमने नोट किया 6 में 18 plus 2 20 by 3 is equal to gain into CP upon CP, what is CP, 915 into 100, फिर इसको क्रॉस करते हैं, तो we got 20 by 3 into 915, और 100 को मिला दे तो यहाँ अपॉन 100 होगा is equal to gain। I hope you understood। देखो यहाँ पे एक ही फॉर्मूले, बस इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व कर ले रहे हैं क्वेश्चन को, सो ओनली दैट फॉर्मूला आई वाज एक्सप्लेन, गेन परसेंट गेन, तो इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो 20 से कट कर दो, ये 5 आ गया, और 5 से इसको कैंसिल किया, तो 5 1 जा 5 8 जा 40, 5 8 जा 183 डिवाइडेड बाय 3, और अगर 183 को 3 से डिवाइड कर दें तो 61 आ गया गेन, और गेन इक्वल टू यू नो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, so 61 is equal to selling price minus cost price is 915, correct ना?
अभी 915 को ट्रांसपोज कर दें तो आई कैन गेट द सेलिंग प्राइस. So selling price is equal to 61 plus 915. So 5 plus 1 6 and 7 9. 976 rupees is the selling price. तो देखो easily by using only explained formula I have got it selling price. So this is the simple way. In this also you can solve, but those are, if you are getting confusion in that, it is easy for you that you already by heart in the earlier classes, then you can apply that formula also, no problem at all. But dear student, try, because as you grow, as you becomes the go in the higher classes, so you need to understand the process. How can you solve with the मिनिमम फॉर्मूला से मैक्सिमम वर्क हम कर सकते हैं. मिनिमम मेमोराइज करें और ज्यादा से ज्यादा हम अपने काम को कर लें. तो दैट इज द स्किल. इट इज कॉल्ड द स्किल. सो वी अप्लाइड द फॉर्मूला हियर एंड विद दिस फॉर्मूला ओनली आई गॉट द आंसर. सो ओके, सो यू नीड टू ट्राई बाय दिस वे आल्सो. क्लियर? बट नॉट एट ऑल. ऐसा नहीं है कि तुम अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू कैन सॉल्व बाय डायरेक्टली आल्सो इफ यू वांट, बट in my opinion you need to try with this way, because in this process less number of formulas are required to by heart. Okay, clear? I have explained this question. I hope you understood. One more part of this question I will explain. Next part I will explain in this question. I will explain the third one. It's third part. हम इसका third part explain करते हैं. Question number 2, it's third part. In the third part it is cost price is given 875 and loss of 12% given है. देखो cost price, loss given not gain, और selling price हमको निकालना है. तो loss का question हम लोग solve करते हैं. cost price is given rupees 875, rupees 875. selling price निकालना है और loss in percent में भी given. loss in percent, how much percent? 12% का loss. देखो इस question में बताया गया loss of 12%. okay, look, there is the loss of 12%. In this question, there is the loss of 12%. 12% का loss है. So now look, how can we solve the question? Again, formula use करो. Loss in percent is equal to, you know क्या होता है? Loss by, always याद रखना है, loss by क्या होता है? CP. Loss by CP into 100. Loss percent, how much? 12. यहाँ हो गया देखो 12 is equal to loss upon CP. CP is 875 into 100. करेक्ट ना? फिर इसको ट्रांसपोज करो. 12 into 875 divided by 100 is equal to loss. और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे. हाउ कैन वी सॉल्व? ये देखो सॉल्व करते हैं. 5 से कैंसिल करते हैं. ये देखो 20 एंड 5 से कैंसिल करो 1. करेक्ट? 37 5 7 जा 35 5 5 जा 175. 2 से कैंसिल कर लें. देखो ये हुआ. 2 से कैंसिल करें तो क्या मिलेगा? 10 और यहाँ हो गया 6. 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 into 5 देखो ये हुआ 0. 42 और 3 45 plus 4 6 1 जा 6 plus 4 10. I know that much. 10 से डिवाइड करेंगे अपॉन 10 is equal to loss. ये 0 कैंसिल हुआ. कितना लॉस हुआ? 105. यू नो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. ये होता है ना, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. सो 105 इज इक्वल टू CP माइनस SP. CP इज गिवन 875 माइनस SP. अभी देखो इन दिस क्वेश्चन क्या होगा? SP यहाँ ट्रांसपोज होने वाला है. SP इज इक्वल टू 875 माइनस 105. वो माइनस करो 0 7 7 rupees 770 is its selling price. What is its selling price? Rupees 770 rupees. So selling price is rupees 770. ठीक है? ये rupees 770 is its selling price. Correct ना? So in this way you can solve the question. In this way you can solve the question easily. You will understood. Okay? So rupees 770. Correct na? Right. So students, for today that much only. You need to go through the given video and try to solve the question till third.
third you need to try by yourself. In next class I will explain 1-2 part of third question also. So only I am giving till third question. Question number 1, all parts true and its thirds. Clear? Okay. So do it. And if any confusion, any problem, you can ask to me. Okay.